স্বামীকে হারিয়ে ন্যায়ের লড়াইয়ে স্ত্রী, নীরব প্রশাসন। স্বামীকে হারিয়ে পথে পথে ঘুরছেন স্ত্রী। ন্যায়ের আশায় পুলিশের দরজায় কড়া নাড়লেও কেউ শুনছে না তার কথা। কিন্তু এবার তার লড়াইয়ে সামিল হলেন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অ্যাওয়ারনেসের প্রেসিডেন্ট ফয়সাল খান। জানা গিয়েছে গত বছরের 27শে ডিসেম্বর মোহাম্মদ সুলতান ওরফে চাঁদ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে স্ত্রীকে জানান রানু বেগম নামে এক মহিলা, যিনি গ্রামের প্রধান টুকটুকি বেগমের বোন, তাকে মানসিক নির্যাতন করতেন এবং টাকার জন্য চাপ দিতেন। সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন সুলতান। কিন্তু এই মৃত্যুর পর শুরু হয় নতুন লড়াই। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে অপমানিত হতে হয় সোনামণিকে। এমনকি স্থানীয় থানায় অভিযোগ নিতে অস্বীকার করা হয়। পান্ডুয়া থানায় এফআইআর দায়ের করা হলেও সেই অভিযোগ নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। অভিযোগ, উল্টে সোনামণি ও তার 2 সন্তানকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বাড়িতে হামলার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই ন্যায়ের দাবিতে আওয়াজ তুলেছেন মানবাধিকার কর্মী ফয়সাল খান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন কি এতটাই দুর্বল যে এক মহিলার স্বামীর মৃত্যুর বিচার এখনও পর্যন্ত দিতে পারছে না? কেন এক গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে পুলিশ নিতে ভয় পাচ্ছে পুলিশ? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় কি এভাবেই উন্নয়ন হবে? হাওড়া থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, বাংলা নিউজ, কলকাতা। নাম সোনামণি বেগম। কি প্রবলেম আছে? প্রবলেম আছে আমার প্রধানের বিষয়। প্রবলেমটা প্রধানের বোনের বিষয় প্রবলেম। কি হয়েছে? আমার হাজব্যান্ড ছিল প্রমোটার, তো প্রধানদের সাথে একটা লেনদেন থাকেই কাগজপত্র করার জন্য। তো ওদের সাথে পুরো একটা ঘরের মতন একটা হয়ে গেল ব্যবহার। একটা হতে হতে আস্তে আস্তে একটা রিলিজে একটা এতে চলে গেল। তো ওই জন্যে ওরা টাকা পয়সা সব নিয়েছিল আমার হাজব্যান্ড থেকে থেকে অনেক পয়সা করি সব নিয়েছে। নেওয়ার পরে যখন আমার হাজব্যান্ড পয়সাটা চাইছে, কে পয়সা নিয়েছে? প্রধানের বাবা। কি প্রুফ কি আছে কি ওনার টাকা নিয়েছে? এই তো পেপার আছে। পেপার কত টাকা নিয়েছে? 8 লাখ। 8 লাখ টাকা। ये कब लिए थे? কবে নিয়েছে? এটা নিয়েছে কত তারিখে হয়েছে এটা দেখুন, কোন মাসে নিয়েছে এটা? 18 মে 2024। হ্যাঁ, 18 মে 2024। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনার হাজবেন্ড কি কি সুতে? হ্যাঁ, সুসাইড করেছে প্রেসারে। প্রেসারে? ওদের প্রেসারে। किसने प्रेशर दिया, क्या वजह थी? प्रधान लोग दिसे प्रेशर, उसका घर वाला दिसे, पूरा फैमिली दिस था प्रधान का। पैसा मांगा था बोल के। ये कौन कौन है? तो इस बारे में কবে সুসাইড করেছে আপনার হাজবেন্ডটা? दिसंबर 26 दिसंबर को। 2024? हाँ, 24 का। এটা আছে ওই তো প্রধানের বোন রানু বেগম। और ये प्रधान है ना? नहीं, ये प्रधान नहीं है, प्रधान का भाभी है। अच्छा, वो आपके हस्बैंड? হ্যাঁ, মেরা আপনি কি বলেন? আমি ন্যায় বিচার চাইছি যে আমার স্বামীকে এরকম করে প্রেসার দিয়ে মারা হয়েছে। টাকা তো নিয়েছে, নেওয়ার পরে যখন টাকাটা চাই বলে এরকম ধমকি দিয়েছে ওরা। তারপরে এরকম যে রিলেশান ছিল, যে আমার কথা বলতো যে তোর বউকে এরকম বলে দেবো, তোমার ওয়াইফকে এরকম সব এগুলো পাঠাবো, ফটোগুলো পাঠাবো, এ করবো, ধমকি দিত এরকম। প্রধান নাম কি আছে? প্রধানের নাম টুকটুকি, আর রানু বেগমের সাথে সম্পর্ক ছিল। থানা কি বলছে? থানা বলছে, আমাদের তো বাড়িতে বাই পোস্ট পাঠিয়েছিলাম, থানাতে তো আমি 8 বার গিয়েছি, ডোমজুর থানায়। তো আমার সাথে তো কোনো কথাই বলেনি। ডোমজুরের ওসি আমার সাথে কথাই বলিনি। আমার লয়ার ভিতরে যেত, বলে না ওনার সাথে কথা বলবো না। কি কথা বলবো ওনার সাথে? কথা বলবো না। আমি 8 বার গিয়েছি, 8 বার ঘুরে ঘুরে আমি চলে এসেছি। कभी आपके हस्बैंड ने ये सब बारे में डिस्कस? नहीं, जब लास्ट में उनका जब लास्ट स्टेशन में था, तब हमको बोली से जो प्रधान का सब बहन घर वाला सब हमको बहुत पैसा दिया था। जब उनका डेट होने का कुछ टाइम पहले सब बोला है, कागज है, तो प्रूफ है मेरा, हमको मोबाइल ठो मेरा दे के गिस था, जो मेरा प्रूफ है तो लड़ेगी। तो आपको तब डाउट? साइट ऑलरेडी जहर खा लिया था। हमको जो हॉस्पिटल में था ना, तब हमको उस टाइम बोला था सब कुछ बात, सब हमको बोला था उस टाइम। इसीलिए तो हम लोग मुसलमान में तो 40 दिन नहीं निकालने को, और पूरा प्रूफ तो मेरा फ़ोन में था। तो इसीलिए सब फ़ोन में हम प्रूफ गिनो सब एक जगह करते रहे। तब तक बोले एक जगह करके तब हम जाएंगे, 40 दिन तो नहीं निकालने को हम लोग को इसमें। तब हम उसका बाद तो ये सब तो थाना, तो हम हर थाना घूरे, हर जगह घूरते घूरते तो इतना लेट हो गया। কত মেয়ে কত ছেলে আছে এখানে আপনার? আমার দুটো ছেলে। 2 ছেলে আছে। হ্যাঁ, ওই তো দুটো ছেলে, মেয়ে নেই আমার, দুটো ছেলে। এই একটা ছেলে আছে আর একটা ছেলে আছে, ওই তো। सोनामणि बेगम है, ये ऑलरेडी हमको चिट्ठी की है, इंसाफ की गुहार लगाई है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इंसाफ के लिए हम लोग आते हैं, इसीलिए इनके पास आए हैं। और हम खुद प्रधान के पास गए और प्रधान
से बात भी हुई मेरी फ़ोन पे, मगर उन्होंने कहा 1 घंटा के बाद आ रहे हैं, 1.5 घंटा के बाद आ रहे हैं, 2 घंटा हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि लिपापोती इनके साथ में हो रहा है। एक आम पब्लिक, आम सिटीजन, एक महिला हो करके उनको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से डायरेक्ट सवाल है कि आप एक माँ हैं, माँ माटी मानुष की सरकार है, उसके बावजूद भी ये महिला को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स के तौर पे। क्योंकि ये न्याय व्यवस्था जो सरकार तो दूर की बात है, प्रशासन भी इनकी नहीं सुन रही है, प्रशासन तो दूर की बात है, इनका प्रधान भी नहीं सुन रहा है। तो आखिर बताइए कि ऐसे प्रधान को लेके क्या करेगा यहाँ की जनता, बांकुड़ा की जनता। तो जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। क्योंकि इनका इतना बड़ा मामला है, देखिए इनके साथ में, इनका ऑलरेडी अवेयर, इनके साथ में ये संपर्क था, लेन देन है, पूरा कागज है, मगर उसके बाद भी 108 का धारा लगा है। ये देखिए 108 का धारा लगा है, उसके बाद भी प्रशासन खामोश है। तो कौन सी न्याय व्यवस्था की बात हो रही है बंगाल में। हम ममता बनर्जी से डायरेक्ट मांग करते हैं कि आप, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, आपके नाक के तले इस तरह का, प्रधान के सामने में इस तरह का मामला हो रहा, थाना के सामने में, और एक मर जाता है, पूरा इनका पास डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। आप लोग थाना गए थे और प्रधान के पास आप गए थे? देखिए मैं खुद प्रधान के ऑफिस में मैं 2 घंटा तक वेट किया हूँ, ऑलरेडी मैंने फ़ोन में बात भी किया हूँ। मैं हूँ 1 घंटा का टाल बटाल कर देती हैं, फिर उनको 1 घंटा बाद फ़ोन करते हैं तो वो कहती हैं कि 1.5-2 घंटा टाइम लगेगा, मेरा गारंटी नहीं है। तो प्रधान को खुद हम जैसे प्रतिनिधि के साथ में, जो हम खुद चल करके आए हैं कोलकाता से, उनको हमारे लिए वक्त नहीं है, तो आम जनता के लिए उनके पास क्या वक्त होगा। कौन सा पड़ता है? ये थाना डोमजूर थाना पड़ता है, फाड़ी है, फाड़ी भी है। अभी फाड़ी थाना से भी मेरे ऑफिसर लोगों से बात हुआ, इन्फॉर्मेशन दिया, तो ऑफिसर लोगों तो उन प्रधान का कॉल आ जाता है कि भैया वो प्रधान के ऑफिस में कुछ लोग जमा हुए हैं, तो प्रशासन 2 गाड़ी भर के आ जाता है। मगर एक विक्टिम्स के लिए ये 8 बार थाना गई है, मगर उनके लिए कोई गुहार नहीं सुना जा रहा है। मगर एक प्रधान का कॉल चला जाता है कि मेरे ऑफिस में कुछ लोग आ गए हैं, तो आप जल्दी से, तो 2 गाड़ी हाय हाय करके फोर्स के साथ, पैरामिलिट्री के साथ में फोर्स में आ जाते हैं, आप पूरा लाठी लेकर के, डंडा लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो आप जब एक प्रधान के ऑफिस में अगर लोग जाते सवाल पूछने के लिए, हम जैसे प्रतिनिधि जाते हैं तो 2 गाड़ी भर के फोर्स आ जाता है। तो आप बताइए कि ये महिला के लिए क्यों आपका पास टाइम नहीं है, क्यों जवाबदेही नहीं है। अरेस्ट का मांग कर रही है, ये अरेस्ट का मांग कर रही है, पेपर दे चुकी है, सारे डिपार्टमेंट को पेपर ऑलरेडी देखिए, इतना सारा डिपार्टमेंट में देने के बावजूद भी उसके बाद इंक्वायरी आज तक नहीं हुआ। हम तो वही जानना चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी नहीं हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है। कहीं ना कहीं प्रधान का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या प्रेशर है। ये जो धारा लगा हुआ है, ये धारा के साथ में क्यों इंसाफ नहीं हो रहा है, प्रशासन खामोश क्यों है। क्या हमें लास्ट में जब सरकार या प्रशासन नहीं अगर एक्शन लेगी तो हम लोग हाई कोर्ट रीट करने पे मजबूर हो जाएंगे, प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। আমি ন্যায় বিচার চাই প্রশাসনের থেকে, যেন আমার ন্যায় বিচার চাই। বাংলা নিউজ কলকাতা।